everyone, welcome to my channel, and this is day 1 of Android app development with me. So in today's video we are gonna to introduce the Android Studio, and let's take a little tour of it so that we could understand actually the features, the function of it, and how to use each and every section of Android Studio. So let's start. First of all, what is Android Studio? सबसे पहले ये समझते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है। एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो गूगल ने बनाया है, और एंड्रॉयड स्टूडियो अब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ही है, बिग डिफरेंट आईडीज़ है जो अवेलेबल है, बट we prefer Android Studio because it's more compatible and more official, we can say. After that, you can see on the screen that it's a welcome screen of the Android Studio. If you're not installed the Android Studio yet, just check different videos on YouTube, and if you want that installation from me, just let me know in the comments. I will show you. So जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता है, सबसे पहले हमें ये वेलकम स्क्रीन दिखेगी। इनमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे वो है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, एंड more actions will be there. Just because I have created a lot of projects here, I couldn't able to see, but you can see that there is a more action named option there. So न्यू प्रोजेक्ट का यूज़ नया, व्हेन वी क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट वी विल एबल टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओपन से हम हमारे एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, और मोर एक्शंस में रहेंगे हमारे डिफरेंट सेटिंग्स और डिवाइस मैनेजर और एसडीके मैनेजर। आफ्टर दैट लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ये विंडो दिखती है। यहाँ डिफरेंट ऐप टेम्पलेट्स होते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिगिनर्स के लिए वी प्रेफर एम्प्टी एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, बिकॉज there are different uses of each activity. Which type of app you're gonna develop, this is actually based on which activity do you choose in the first place. So we are learning at a beginner level. We're gonna choose empty views activity because it's simple. Okay, there is no any additional things. Okay, it's just simple, so we are gonna choose that. Now it's a कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हम ऐप की बेसिक डिटेल सेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट फील्ड्स लाइक नेम ऑफ द एप्लीकेशन, पैकेज नेम, ऐप का यूनिक आइडेंटिटी रहता है पैकेज नेम, सेव लोकेशन, प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगा ये लोकेशन रहती है, लैंग्वेज। there are 2 different languages in which we could develop our apps, Java and Kotlin. Minimum SDK Android version. बिगिनर तो हो जावा, और मिनिमम एसडीके थोड़ा कम सिलेक्ट करो। सो वी वुड प्रेफर चूज डिफॉल्ट। ओके, जस्ट डोंट चेंज एनीथिंग, जस्ट चेंज योर नेम, लाइक आई वुड से there are so many first projects I have done, so I will write my first ever application. After that, just to reduce the confusion, बाकी की सेटिंग्स जैसे है वैसे ही रहने दो। लैंग्वेज आपको जो आती है जावा, कॉटलिन, वो चूज़ करो। अगर कौन सी भी नहीं आती है, just go for the Java, because I will gonna continue with Java. धीरे धीरे सब सीख जाओगे। Don't get confused. Just focus on one thing first. You're gonna develop that
skill, that like understanding, like what I have to do, like the क्या कहते हैं, आप जब डेवलप करने जाओगे आगे आगे तो आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए विदाउट taking any guidance. So don't get confused, just focus on one thing first. Okay. So this is Android Studio's main interface. आप अब प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये एंड्रॉयड स्टूडियो का मेन इंटरफेस जहाँ हम मैक्सिमम काम करते हैं. Okay, so when we open this interface, we will gonna see that there is something blue line here. So this is a Gradle. Okay, so this is loading. What is Gradle? Gradle is a build system in Android Studio that helps to create dependencies for the Android Studio. It acts as a manager for the Android Studio. It will correct all resources, all the dependencies which we are going to use to develop our app. So this may take a little bit time. It will depend that what कि आपका लैपटॉप का रैम क्या है. अगर आपका रैम 8 GB होगा तो ये ज़रा सा टाइम लेगा. अगर 16 होगा तो हो जाएगा जल्दी से. ओके, सो project tool window. Okay, so let's first of all get introduced to the tool window. लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा है इस कहते हैं प्रोजेक्ट टूल विंडो. इसमें क्या होता है, ऐप, जावा, रिसोर्सेस, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट. ऐप क्या है, ये मेन फोल्डर है. जो ये ऐप फोल्डर दिख रहा है आपको, ये मेन फोल्डर है. उसके बाद जावा फोल्डर में हमारे एप्लीकेशन का लॉजिक होता है, जैसे मेन एक्टिविटी डॉट जावा. आफ्टर दैट आरी रिसोर्सेस फोल्डर में लेआउट, ड्रॉएबल, वैल्यूज, basically the components, the designs we are gonna use for our project. UI we are gonna to use for our app development. These all things gonna be stored in the resources folder. Manifests, ये फाइल का ब्रेन होती है जिसमें ऐप की परमिशंस, एक्टिविटीज डिक्लेयर्ड होती है. बेसिकली द परमिशंस आर डिक्लेयर्ड ओवर हियर. After that, editor area, middle part, center part of the Android Studio. सेंटर का जो बड़ा एरिया है उसे हम एडिटर एरिया कहते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जावा और कॉटलिन में कोड लिखते हैं, XML लेआउट डिज़ाइन करते हैं और UI एडिट कर सकते हैं. मेनली जो कोड हम डिज़ाइन करेंगे वो इस पार्ट में होगा. आफ्टर दैट XML डिज़ाइन कोड एंड स्प्लिट व्यू. जब हम XML लेआउट फाइल ओपन करते हैं, कौन सी भी XML फाइल, तब हमें ऊपर थ्री ऑप्शंस दिखेंगे. डिज़ाइन, कोड एंड स्प्लिट. ओके, सो डिज़ाइन पर क्लिक करने से हमें ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वो है डिज़ाइन. स्प्लिट में हमें वन साइड कोड दिखेगा और वन साइड डिज़ाइनिंग पार्ट दिखेगा. कोड में सिर्फ कोड पार्ट दिखेगा. आफ्टर दैट टॉप साइड टूल बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स. टॉप पे जो बटन्स दिख रहे हैं वो उनको टूल बार कहते हैं. जैसे कि रन बटन, डीबग, आफ्टर दैट डिवाइस सिलेक्टर. ये बटन्स टूल बार के इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर दैट
डिवाइस मैनेजर एंड इम्यूलेटर। डिवाइस मैनेजर इम्यूलेटर, एंड्रॉयड ऐप टेस्ट करने के लिए हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये काम इम्यूलेटर करता है, जो एक वर्चुअल एंड्रॉयड फ़ोन होता है। डिवाइस मैनेजर से हमने ये इम्यूलेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। Here you can see plus sign. If you create on this plus sign, there are two options you can see. Select remote devices, create virtual device. So to run our apps, we could attach our phones using USB, or either could create a virtual device. So after clicking on create virtual device, there are so many options you can see, and you could select the version of your choice. I have created a Pixel 6. If I click on run, it will start its it will take little bit time. Till then I will explain you the bottom area, bottom tool window. Let's see, there is a phone like screen you can see here. If I click on back, it just work like your phone, but it's virtual. After that, bottom tool windows, नीचे साइड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैनल्स होते हैं, लाइक लॉग कैट, एरर्स और मैसेज दिखाने के लिए बिल्ड, दिस बिल्ड ऐप बिल्ड सक्सेसफुली हुई या नहीं ये बताता है, एंड टर्मिनल कमांड्स रन करने के लिए, जैसे गेट या ग्रेडल कमांड्स। ओके, आफ्टर दैट these are some okay, so ये एंड्रॉयड स्टूडियो का कंप्लीट डिटेल टूर था बिगिनर के लिए। अगर आपने पहले बार एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया है तो अब आपके लिए बिल्कुल न्यू लगेगा, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हम फर्स्ट सिंपल एंड्रॉयड ऐप बनाना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप learning, keep building your skills. Just